Welcome dear all. Here is Professor Rameshwar Gagrani from the Gagrani IIT JEE NEET and Foundation. This is our online portal where we are learning various subjects to prepare for the national entrance exams like BITSAT, IIT, NEET, VIT, NATA, etc. So you are all enjoying the online learning in this lockdown period. I hope so. You are happy with this Gagrani IIT JEE NEET online portal where our team of experts, eminent professors, they are delivering the lectures of various subjects. So we will be happy if you in presence appear on the screen. This is live streaming, no pre-recorded, no pre-narrated lectures. This is a live streaming. इसीलिए आप सभी अगर स्क्रीन पर आओगे तो that will energize the teacher. It will encourage the teacher to deliver best. So you all are welcome, and I advise you your earphone or speaker should be clear so that my voice, our teacher's voice, should reach to you. Teachers की आवाज आप सभी तक पहुंचे, इसका ध्यान रहे. Around you, whatever the disturbances are there, please shut down them, nullify them, and try to sit in a comfort manner. You must be in a fair impression because this is live recording is going on. All lectures are, we are recording all lectures for further assistance. In coming days, when the regular classroom coaching will start, these lectures will be available for all those students who will be there for their revision purpose. So that they will improve and can prepare well. So all are welcome. Ek, Abhishek, Aditya, Akshata, Ashwini, Asmita, Jayesh, Kanika, Himanshu. Somebody is there. Galaxy J2, Prachi. Some students are newcomers. Today also they joined right now. For them, we will be added soon. आपको जल्दी ऐड किया जाएगा. आज शाम तक मैं आपको ऐड कर दूंगा. Gagrani Talent Hunt. This is our WhatsApp group. Gagrani Talent Hunt. This is our WhatsApp group. हाँ बोल. ऐड कर लियो मैं. तू जो भेजो ऐड कर लियो. So all newcomers, for them and those who don't know, आप सभी के लिए गगरानी टैलेंट हंट ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पर आप सभी एनरोल हो. आप सभी को सारे अपडेट्स, पासवर्ड्स, आईडीज, नोट्स और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम विल बी अपडेटेड इन दिस गगरानी टैलेंट हंट ग्रुप. द नंबर व्हाट यू आर गिविंग अस, जो नंबर आपने हमें दिया है, दे रहे हैं, उसे हमने रजिस्टर किया है व्हाट्सएप नंबर. तो आप कृपया, मैं आप सभी को, आपके गार्डियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय समय पर गगरानी टैलेंट हंट इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो तो वो चेक करते जाइए, सो दैट यू विल गेट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देयर. बाय द वे अगर कोई इंफॉर्मेशन वहां तक आप तक नहीं पहुंची तो आप सीधा कॉल भी कर सकते हैं. तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है. मोर देन 33 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ ऑन द स्क्रीन. So this is our glorious, you can say that learning. Maximum students, they are daily, new students are joining the existed students, and few students are daily, day by day they are adding. So we are happy to teach you. I suggest you mute your speakers. Quick. Let us continue to our topic. We are learning the basics of foundation
I mean to say, sorry, we are learning the basics of IIT JEE, NEET, and these competitive entrance exams. We are not only preparing for only IIT. We are preparing for all engineering entrance exams. We are learning here for all medical entrance exams, particularly in India. There is a NEET is for medical top courses in MBBS, BDS, but some subordinate entrance exams are also there, like state-wise. Even we are preparing for that. So no entrance exam should ignore. If there is a VIT, we will face it. If there is a NATA, we will face it. If there is a BITSAT, we definitely will crack it. We will prepare for it. So all entrance exams, including CET, our state CET, we are here to prepare you, and you are there to learn this study material as well as our lectures to crack, to reach to your pinnacle, to your destination, that is IIT JEE, NEET, CET, etc. So we are here to prepare for all medical as well as engineering entrance exams. Quick, all students are requested they as early as they come on the screen, and please join quickly because the session is going to start. आपका सेशन शुरू होने जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सभी एज अर्ली एज अगर स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आपको कोई चीज आपकी मिस नहीं होगी, जिससे कि आपका कहीं नुकसान नहीं होगा. So I am happy. This is live streaming. Remember, this is live streaming. These are not pre-recorded lectures. This is live streaming, and therefore this is very interested to learn as it is a live streaming, dynamic है. So that's why it is necessary your presence boost up us. हम लोग सीख रहे थे atomic structure, periodic classification of elements, the periodicity of elements, S block element, P block element, D block element, A block element. So whatever they need, whatever to learn all these, we need certain information, a concrete information, and we are now collecting it day to day. ये सभी को हमें सीखने के लिए, परफेक्ट करने के लिए हमें कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है. कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है. कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मतलब क्या सीमेंट कंक्रीट का कंक्रीट लाना है हमें यहाँ पर? नहीं, हमें सीमेंट कंक्रीट का कंक्रीट ले लाना है. कंक्रीट का मतलब होता है मजबूत, ठोस, जिसका हमें आगे उपयोग होगा, जिसका हमें आने वाले समय में सारे चैप्टर सही तरह से हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर बैठा हुआ एक्सट्रीम टैलेंटेड कैंडिडेट और जिसे बहुत कुछ नहीं आता है, साधारण कैंडिडेट है. मैं चाहूंगा हर एक कैंडिडेट को आने वाले समय में उसका बेस पक्का हो जाए, उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, और किसी भी तरह कोई भी सब्जेक्ट उसके सामने आए, कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आए, तो वो क्रैक करना जरूरी, उसको जमना जरूरी. You should able to answer all these questions in the form of multiple choice questions of various types. Matrix match the pairs, matrix questions, assertion region, true and false, single correct answers, multiple correct answers. Now these are all included in our IIT JEE NEET CET like topic wise notes of Gagrani IIT JEE NEET CET. ये सभी उसमें include है. When you will get all these things, you will realize that the importance of these lectures which are going day to day in this lockdown period. So let us have it. Yesterday we have seen about the shells, their types, subshells, their types. कल हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल्स जिसे मैंने बताया, कल उसकी डेफिनेशन भी हमने समझ ली. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द शेल एज वेल एज द एनर्जी. वो हमें साइज ऑफ द शेल बताता है, एनर्जी बताता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट लार्जली डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट्स. शेल्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा गया है. ये एक नया वर्ड मैं तुम्हें बता रहा हूं. अभी तक मैं शेल्स को मेन एनर्जी लेवल्स, प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन शेल नंबर, मेन शेल और स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बता रहा हूं. इसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा गया है. लेकिन ऑर्बिट जो होते हैं, अगर मैं बताऊं तो ऑर्बिट ये सब शेल, एसपीडीएफ को कहा जाता है. मेरी बात ठीक से नोटिस करो, ऑर्बिट्स ये सब शेल को भी कहा गया है. एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट, एफ ऑर्बिट. हम लोग के ऑर्बिट नहीं बताते कभी. के, एल, एम, एन, इस तरह से हम लोग कभी बताते के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट नहीं बताते. जहां की के, एल, एम, एन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. फिर भी कोई जगह पर इस तरह से वर्ड यूज किए. स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब फिक्स है. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? फिक्स. स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स. हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लर्न कर रहे हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लर्न कर रहे हैं जो हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सपोर्ट करेगा और सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन में हमें काम आएगा.
हमें कंपाउंड्स फॉर्म करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन केमिस्ट्री सीखना है, फिजिकल केमिस्ट्री का ज्यादातर रिएक्शंस हमें कवर करनी है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, आई एश्योर्ड यू, यू विल एंजॉय वेयर एवर यू विल बी। भविष्य में आप कहीं भी हो, शायद आप ना हमारे साथ हो, आप कहीं भी जाओ, तो यू विल एंजॉय, यू विल डेफिनेटली हैप्पी दैट यू कनेक्टेड एवरीथिंग इन अ गुड मैनर। तो मैं चाहूंगा आप सभी समझ रहे, मैं ये बता रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये दो चीजें बहुत सिंसियरली समझ ली। मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूं, यहाँ पर मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में एज इट इज, स्टेटमेंट सारे इंग्लिश में, लर्निंग सारा इंग्लिश में, लेकिन ये आपका ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं है, ये हमारा यूजुअल इंग्लिश है। मतलब जैसे हम लोग सारे बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस इंग्लिश है, इसमें ग्रामर का बहुत एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, हमें मीनिंग समझ जाए दैट मैटर्स, लेकिन हो सके तो जितना बेहतर हो, जितना ग्रामेटिकली हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू ऑल। हम लोग हिंदी में भी ये सारी चीजें समझ रहे हैं। इन द मीनवाइल बहुत बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें सभी को हिंदी समजती है, हम लोग हिंदी बोलते भी है, आणि काही वेळेस मी तुम्हाला मराठीत सुद्धा समजवत असतो। कारण काय, ऍज वी कैन अंडरस्टैंड मराठी एंड मेनी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट कैन स्पीक मराठी। हम मराठी समझते जरूर है, मराठी ज्यादातर हमारे महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग पूरी तरह से किया भी जाता है। हाँ, हमारी मदर टंग अलग होती है, मदर टंग हमारी अलग होती है, वो डायलेक्ट होती है। मदर टंग डायलेक्ट है, बोली भाषा है। तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें तुम तो सिंसियरली समझ रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पर मैंने ये बताया था न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हम लोग पहुंच गए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कॉम्प्राइजेस शेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा गया है। स्थिर कक्षा, स्थिर कक्षा, क्यों उनको स्थिर कक्षा कहा गया है? बिकॉज दे आर फिक्स्ड, दे आर लोकेटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे आर एट पर्टिकुलर डिस्टेंस where the electrons are revolving with high speed। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, दे आर नॉट स्टेबल। वहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं। जहां न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन स्टेबल है, भले वो वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के लिए योकावा हिडेकी ने अपना योगदान दिया, उसने मेसॉन करके इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, being extremely heavy massive bodies, subatomic particles, they are not too much move from their place। वो बहुत कुछ घूम नहीं सकते। अच्छा, उनकी बाउंड्रीज भी तो फिक्स कर दिए, उनकी बाउंड्रीज एक ही है, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री वही उनकी बाउंड्री। इट इज अ स्मॉलेस्ट टाइनी प्लेस। न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, अतिशय छोटा सा सूक्ष्म असा भाग आहे, ज्यामध्ये आपण प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनला ठेवलेला आहे। वेअर वी लोकेटेड दीज हेवी मॅसिव्ह पार्टिकल्स, heavy massive subatomic particles, protons and neutrons, along with hadrons, barons। यहां तक तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। चार्ज on the nucleus is positive and the whole mass of the atom is concentrated in a smallest tiny place called as nucleus, because nucleus contain very heavy massive bodies, protons and neutrons। Electrons are lightest particle as compared to the protons and neutrons, their mass is considered to be negligible। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो बिल्कुल जैसे हम लोग बताते हैं फूक मारो उड़ जाएगी, मतलब जैसे हम लोग किसी को फूक मारेंगे तो उड़ जाएगा। जैसे कागज होता है, रोड पर रख दो तो कहां चले जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन वही रोड पर आप छोटा सा पत्थर रख दो, आपके सामने आंगन में एक छोटा सा पत्थर रखो, देखो वो उड़ेगा क्या? वो मूव भी नहीं होगा, जगह पे से हिलेगा भी नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, स्टॉर्म आ जाए तो स्टॉर्म तो बड़े बड़े पर्वत भी हिला देता है, स्टॉर्म की बात हो रही है। यहाँ पर हम लोग स्टॉर्म की बात नहीं कर रहे, इन जनरल कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि अगर कागज है तो उड़ जाता है, बिकॉज इट इज अ लाइटेस्ट पार्टिकल। कागज जो है लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, और वही स्टोन जो है, वही वुडन ब्लॉक है, समवट हेवी है, डेंस है। नो मैटर देयर साइज, उनका साइज से लेना देना नहीं। देखे तो स्टोन छोटा सा है, आप बड़ा कागज रख दो, जैसे कोई पेपर का आप कागज रख दो, जैसे लोकमत है, कोई भी पेपर ले लो मान लो, तो हम लोग उसको रख दे तो उड़ जाएगा। उसका साइज कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका मास जो है वो नहीं के बराबर है, निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द स्टोन। स्टोन तो छोटा सा है, साइज भी उसका छोटा सा, लेकिन मास बहुत ज्यादा है। सो मास मैटर्स। यहाँ पर मास की बात करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये काफी हेवी पार्टिकल्स है, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, in the center of the atom called as nucleus। They are 1850 times neutrons and protons, particularly protons, they are 1850 times 1850
गुना वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में वजनी है, जड़ है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg कंसिडर करूं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं ये तुम्हारे अपने लैंग्वेज में समझने के लिए बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन 1 kg का नहीं है, वो तो एटॉमिक मास यूनिट में उनका मास कैलकुलेट होता है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली लाइटेड पार्टिकल्स, इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी। लेकिन अगर तुलना करनी है तो तुलना किसमें होगी? तुलना होगी दो छोटे एनिमल्स में, तुलना होगी दो छोटे एनिमल्स में। एक चींटी में और एक बकरी में तुलना नहीं होगी, एक बकरी में और एक एलिफेंट में तुलना नहीं होगी। आप समझ लो, कंपेरेटिव साइज होना जरूरी है, कंपेरेटिव बॉडीज होना जरूरी है, तब तुलना होगी। तो यहाँ पे मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनकी अगर तुलना करूं तो प्रोटॉन्स आर एक्सट्रीमली मैसिव बॉडी, दे आर 1850 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो अगर मैं 1 kg, इफ फॉर अ मोमेंट लेट अस कंसीडर फॉर कन्वीनियंसी, समझने के लिए इलेक्ट्रॉन 1 kg का कंसीडर करते हो, 1 kg ऑफ वेट इज बियर्स द इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन बियर्स 1850 kg of mass. Imagine this mass around 2 ton, 20 क्विंटल्स, 19 क्विंटल के आसपास ये मास पहुंच जाता है। So extremely massive bodies. This is what about nucleus I told you. ये मैंने न्यूक्लियस के बारे में आप सभी को बताया था। In the beginning, few students they are coming somewhat some late, 1-2 मिनट 5 मिनट कुछ स्टूडेंट लेट आते हैं, इसलिए मैं थोड़ी रिवीजन भी कर लेता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि जो नया टॉपिक है, जो नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है या नया इंफॉर्मेशन है, तो आने वाले स्टूडेंट को भी उसका पूरा मदद मिलती है, उसको पूरी तरह से मालूम होता है। नहीं तो वो लेट आ गया तो उसका जो नया इंफॉर्मेशन वो मिस कर देगा, इसीलिए मैं थोड़ी सी रिवीजन ले लेता हूँ इस तरह से। अब मैं शेल्स की तरफ बढ़ जाता हूँ जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल्स बीइंग एक्सट्रीमली लाइटेस्ट पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे ट्रेवल विथ हाई स्पीड। जैसे कागज है, मैंने बता दिया, कागज है, कागज को आप बाहर रख दो, जैसे एयर आएगी तो इतने स्पीड से कहां चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो लाइटेस्ट पार्टिकल है ना, लाइटेस्ट पार्टिकल होने की वजह से वो काफी हाई स्पीड में है, बट दे शुड हैव द एनर्जी। विदाउट एनर्जी नोबडी कैन मूव, विदाउट एनर्जी कोई मूव नहीं हो सकता है, इसका ध्यान रहे। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी होती है, द एनर्जी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट, वो जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में उनकी अपनी एनर्जी होती है। एंड इलेक्ट्रॉन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर के माध्यम से एक्सप्रेस किया गया है। एंड इलेक्ट्रॉन इसको एक्सप्रेस करने के लिए 4 क्वांटम नंबर ने अपना काम किया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्यूनिथल, सब्सिडरी या सेकेंडरी, तीनों के मीनिंग एक ही है। एज़्यूनिथल, AZI-NUTHAL, उसे ही मैं सब्सिडरी बता रहा हूं, उसे ही मैं सेकेंडरी बता रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसे मैं एज़्यूनिथल क्वांटम नंबर के नाम से बता रहा हूं, जिसे मैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से बता रहा हूं। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर, and these are indicated by the symbol small letters small m, small l, small m, small s। n मतलब स्मॉल लेटर, सारे में स्मॉल लेटर की बात कर रहा हूं। स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल s। पिछले बहुत दिनों से हम जो लर्निंग कर रहे हैं, इसमें तुम लोगों ने सभी ने नोटिस किया होगा, अल्फाबेट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हम लोग रैंडमली नहीं बात कर सकते। एन, ऐसा अगर मैं बोलूं एन, इट इज अ पार्शियल आंसर, ये पार्शियल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ये सभी सिंबल को अपने मीनिंग्स है, अपने अपने इनके एग्जिस्टेंस है, अपना इनका पर्टिकुलर स्टेटस है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर मैं क्वांटम नंबर्स एक्सप्रेस करूं तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल स्मॉल एन। All quantum numbers are expressed by small letters। फिर वो कौन कौन से है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं स्मॉल n से इंडिकेट कर रहा हूं। एज़्यूनिथल, सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल स्मॉल l। स्मॉल l, l फॉर मान लो लार्ज जैसे कहा जाता है, तो स्मॉल l की बात कर रहा हूं। l फॉर लक्ष्मी नारायण, सो l, स्मॉल l मतलब
सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको मैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा हूं। अब इनके अपने इंपॉर्टेंस है। ये क्वांटम नंबर क्या एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट दे टेल यू, ये क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बताता है, साथ में हमें एनर्जी इट एक्सप्रेस लार्जली द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या बताता है, कहीं वो सबशेल के बारे में तो नहीं बता रहा है। तो ये एक बात हमारी सामने आएगी। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में स्मॉल एम से इंडिकेट कर दो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल स्मॉल एम। मैं थोड़ा स्पीड कम करता हूं जिससे आप सभी को ठीक से सुनाई भी दे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तक मेरी आवाज जाती जरूर है, लेकिन ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम वो आवाज क्रैक हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं भी उसको मेरी आवाज में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। भले आप मुझे ना दिखे, मैं आपको नहीं दिखूं, लेकिन मेरी आवाज, टीचर की आवाज आप तक बिल्कुल अस्खलित पहुंचनी चाहिए, आप तक आवाज आनी ही चाहिए, क्योंकि हर वर्ड, हर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ड का, हर स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने यह बताया कि अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल को और मैं दो नाम बता रहा हूं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एजिमुथल को मैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बता रहा हूं, जिसको मैं सिंबल एल से इंडिकेट कर रहा हूं, स्मॉल एल। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब स्मॉल एम से इंडिकेट कर रहा हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल स्मॉल एम। इट हैज सर्टेन वैल्यूज, उनकी वैल्यू है। इट टेंड्स फ्रॉम -m टू +m। उसकी शुरुआत -m से +m तक होती है। ये हम आगे जाके देखेंगे, उसको थोड़ा समय लगेगा। तुरंत ये सारी चीजें, जो चीज आज हमें लर्न करनी है उसका ही हम लोग वेलकम करेंगे। जो चीज आज हमें लर्न करनी है उसका वेलकम करेंगे, इसका ध्यान रहे, तो आपकी विजय निश्चित है। क्योंकि सर्टन रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। रैंडमली कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते। लेसन टू लेसन चलना होगा तो पहले ये सारी चीजें समझनी होंगी वर्मा। हमें लेसन टू लेसन अगर चलना होगा, हर लेसन को हमें अगर ग्रैब करना है, एनकैश करना है, तो यहां पर कार्तिक और कार्तिका हमें ये सब समझना पड़ेगा, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं इन सारी चीजों पर जोर दे रहा हूं। क्या वजह है कि मैं सारी चीजें इस तरह से ले रहा हूं, कुछ तो वजह होगी। क्यों? क्योंकि टीचिंग तो सारे टीचर्स कर देंगे। गगरानी के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो सारे आएंगे स्टेप बाय स्टेप विथ, दे विल कम विथ अ डायनामिक प्रेजेंटेशन एंड दे विल डिलीवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईच चैप्टर, ईच टॉपिक। लेकिन वो सिखा के निकल जाएंगे, वो अपना काम करेंगे, बेहतर सिखाएंगे, आगे निकल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कैंडिडेट को समझे, उसका बेस मजबूत हो तो उसको कोई भी सामने आ जाए उसको समझेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज स्मॉल एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम है। सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एम। एम मतलब, जैसे एम की बात मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र। एम का मतलब, मैं एम स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र का एम, वो बता रहा हूं। एम, किसी ने पूछा है एम क्या है, तो इट इज एम, स्मॉल एम। एम स्टैंड्स फॉर, मान लो, हाँ, स्मॉल एम की बात कर रहा हूं मैं। देन स्पिन क्वांटम नंबर। Spin quantum number is expressed by the symbol small s. S stands for success, जैसा small s. So N, L, M, S, ये चार क्वांटम नंबर हमें बहुत ही सही तरीके से आगे पढ़ने हैं, जो हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं अगली बात बता रहा हूं। ये सारे क्वांटम नंबर हमें सिंसियरली लर्न करने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटेल में लर्न करना है, क्या बताएगा वो, क्या इंफॉर्मेशन देगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर का क्या रोल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहना चाहता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है, ये जो सारी है, इसके लिए हमें कुछ समय है ये सारी चीजें समझने के लिए। क्योंकि आज बताने के बाद भी तुरंत ध्यान में नहीं रहेगी,
और एक मैं बात इसमें और ऐड कर दूं, प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर प्रांजलि, कौन सी चीज को प्रायोरिटी देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है कि आज के डेट में प्रायोरिटी किसकी है, कौन सी चीज की है। बीइंग अ टीचर, एक टीचर के नाते मुझे प्रायोरिटी किसी को देना है जिसके बदौलत तुम्हें सभी को प्रिपरेशन सही दिशा में चले। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं ये बता रहा हूं अभी कि मैंने सब शेल के बारे में बताया था। मैंने शेल्स की कैपेसिटी डिफाइन कर दी, स्टेशनरी ऑर्बिट, दे आर इंडिकेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एल। उनकी मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी थी 2n स्क्वायर के हिसाब से, 2, 8, 18, 32, 50, 72 एंड सो ऑन। अब मैं उसमें जो सब शेल है, the subshell is a part of shells. Shells contain subshells. There are 4 subshells, S, P, D, F. S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffuser, F stands for fundamental. These subshells, the credit of these subshells, I mean to say in the periodic table, if you know the periodic table, आप किसी ने periodic table अगर देखा है, आपके बुक में भी दिया है periodic table, हमारे पास बहुत से चार्ट है पीरियोडिक टेबल के। आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं, इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 सेक्शंस, दे आर कॉल्ड एज ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। नाउ देयर लोकेशन इज फिक्स, उनके लोकेशन फिक्स है। एस ब्लॉक अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं, आप आपके लेफ्ट से राइट चलो, मैं मेरे लेफ्ट से राइट चलूं, लेफ्ट टू राइट चलता हूं, मतलब दोनों अपोजिट आएंगे। तो मैं अगर मेरे लेफ्ट से राइट चलता हूं, मतलब आप आपके लेफ्ट से राइट चलो, जहां मैं आपको दिख रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलोगे तो लेफ्ट साइड में हमें एस ब्लॉक मिलता है। पहले 2 कॉलम उसे अवॉइड किए गए। दी 2 कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देयर आर 18 कॉलम्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम है। अब ये 18 कॉलम का महत्व क्या है ये समझ लो, फिर तुम्हें कभी कल परसों जिसने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल रहा है, अभी इस वक्त जवाब मिल रहा है, मैं वो जवाब क्लियर कर रहा हूं। अगर मैं 18 कॉलम को मैं क्लासिफाई कर दूं, 18 कॉलम मैंने वर्टिकल कॉलम कंसिडर कर लिए और हॉरिजॉन्टल जो रोज है उसको मैं पीरियड्स बता रहा हूं। वर्टिकल कॉलम्स जो है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईयूपीएसी रूल्स देयर आर 18 कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल रोज जो है, जैसे एक टेबल है, स्क्वायर टेबल किया है, खड़े कॉलम है और आड़े जो है, जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको मैं पीरियड बोल रहा हूं। त्यांना मी पीरियड सांगतोय, त्यांना मी पीरियड सांगतोय, वर्टिकल कॉलमला मी गण ग्रुप सांगतोय, त्यांना आपण कॉलम म्हणतो। सो फर्स्ट 2 कॉलम्स, अभी देखो ध्यान में लो, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं चाहूंगा स्पीकर म्यूट करो। जैसे साइंस में एक बात का ध्यान रहे, मैं सभी को बता दूं, सभी बहुत समझदार है, मैं सभी को एक बात बता दूं, सीखना कैसा है, ट्रिक क्या होती है, लर्निंग आउटकम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस समझो। व्हाट इज लर्निंग आउटकम? लर्निंग आउटकम यह है कि जैसे साइंस में टाइमलाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कौन सी चीज कब डिराइव हुई, कौन सी चीज कब की गई, कौन से शास्त्रज्ञ ने कौन सा काम किया, ये टाइमलाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। जैसे हमारे हिस्ट्री में टाइमलाइन को बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के 100 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हिस्ट्री थी, टाइमलाइन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सिमिलरली यहां पर मैं कॉलम्स की जो बात करूं तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, अभी इसका इंपॉर्टेंस है। There are 18 columns, their status is important. First 2 columns are awarded to the S block. पहले जो 2 कॉलम है ये S ब्लॉक को दिए गए। The last 6 columns means from 18. अभी ठीक से सुनो, अभी बिल्कुल ठीक से सुनना है। मैंने सामने पीरियोडिक टेबल लिया है तुम्हारे सामने, वहां पर मेरे 18 कॉलम्स है। मान लो सामने तुम मुझे देखो तो मेरे सामने जो स्क्रीन दिख रही है वहां पर 18 कॉलम कंसिडर करो। अब लेफ्ट टू राइट में चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से चलूंगा मैं। पहले 2 जो कॉलम है ये एस ब्लॉक से क्रेडिटेड है, दे आर एनरिच्ड विद एस ब्लॉक, उसको एस ब्लॉक कहा है। वहां पे जो एलिमेंट है दे बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। अब मैं आखिरी के 6 कॉलम बोल रहा हूं, लास्ट 6 कॉलम, लेकिन इसको मैं कहां से काउंट करूंगा, आई शैल काउंट फ्रॉम द एंड। मैं एंड्स की बात कर रहा हूं, मैं लास्ट के 6 कहां से काउंट करूंगा, 18 से काउंट करूंगा। मेरी बात ठीक से समझो, जिनको पीरियोडिक टेबल लर्न करना है उनके लिए सारी हिंट्स और ट्रिक है। आई एम नाउ काउंटिंग फ्रॉम 18 से आऊंगा मैं। जब मैं 18 से आऊंगा तो मैं कहां आके रुकूंगा, मैं 13 को आके रुकूंगा। आप बोलेंगे सर आप इतने होशियार कैसे है, इतना आपका कैसे क्या परफेक्ट है सब कैलकुलेशन। अरे भाई वेरी सिंपल है, आप 18 से शुरू करो तो 13 तक आओगे तो 6 हो जाएंगे,
6 कॉलम है, मैंने बताया ना, लास्ट 6 कॉलम 18, 17, 16, 15, 14, ये 5 हो गया और एक 13 हो गया ना। तो इसमें मैजिक कुछ नहीं है, इसको सिस्टमेटिक सुनना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2 columns are reserved for S block elements. Last 6 columns from 18 to 13 they are reserved for P block elements. देखो कैसे तुम्हारे याद नहीं रहेगा, मुझे बताओ। कभी लाइफ टाइम में भूलोगे नहीं, कभी लाइफ टाइम में भूलोगे नहीं। हम गलती क्या कर देते हैं, आखिरी 6 कॉलम हम कहां से काउंट करते, 13 से काउंट करते हैं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। आप 18 से काउंट करो ना, इजी होगा कि नहीं, क्योंकि चढ़ना मुश्किल है। देखो हम लोग बताते हैं, किसी लैडर से चढ़ना है तो मुश्किल है, उतरना तो इजी है ना, उतरना तो इजी है। हाँ, लेकिन उतरते वक्त ध्यान रखना है फिसल ना जाए, इसका ध्यान रखना है। तो वही मैं बता रहा हूं, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 6 कॉलम हो गए जो पी ब्लॉक को मैंने दे दिए। अब देखो इंटरेस्टेड का है, पहले 2 और आखिरी 6, तो पहले 2 के बाद तीसरा शुरू होता है, पहले 2 के बाद तीसरा शुरू होता है, और आखिरी का जो 6